थर्ड वन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ओके, सो सबसे पहले 12, 15 एंड 21, सो यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दैट। ओके, सो 12 के लिए 2 6 are 12, 2 3s are, then 3 1s are 3, so this will be 2 into 3। आपको सिर्फ यही लिखना है। ओके, इनका प्रोडक्ट ही क्या होता है आपके पास में, सेम नंबर आता है। नाउ फॉर द 15, 3 5s are 15, then 5 1s are 5, so 3 into 5। okay, now 21, 3 7s are 21, so this will be 3 into 7। now you have to find the LCM and HCF, so LCM is equals to, LCM means जो कॉमन होते हैं आप उसको वन टाइम लिखते हैं, बाकी सबको आप लिखते हैं लाइक 2 into 2, 3 जो है कॉमन है, सो जस्ट राइट इट वंस, देन 5 into 7। okay, so this will be 3 2s are 6, 6 2s are 12, okay, and 12 5s are 60 into 7, 6 7s are 42, so that means 420 is the LCM and now HCF। so HCF क्या होता है आपके पास जो कॉमन आया है, so 3 is the HCF of this number। now for this 17 क्या है आपका प्राइम नंबर है, so you will get the same, that means 1 into 17 आपके पास रहने वाला है। okay, now for 23 is also prime number, so you will get a 1 into 23। 29 is also a prime number, so this will be 1 into 29। so now first you have to find the LCM, so LCM means 17 into 23 into 29, when you multiply it by 1, so you will get the same number, आपको वही नंबर मिलने वाला है। so now you have to multiply this 29 and 23, so 9 3s are 27, 2 is there, 3 2s are 6, 9 2s are 18, that means 26, that means 26 is there, 2 2s are 4 plus 1 667। now you have to multiply it by 17 also, so 7 7s are 49, 6 7s are 42 plus 4 46, 6 7s are 42 plus 4 46, now this will be 7 6 and 6, so 9, 6 plus 6 12, 13, 12 plus 1 13 is there। okay, now 6 4 10, 10 plus 1 11 is there, so the LCM is 11,339। now what is the HCF of this number, that is common, and common is 1 there, so HCF is common, means 1 is there। now for the third one, okay, third आपके पास 8 9 and 25, so for 8 means 2 into 2 into 2, 2 4s are 8, 2 2s are, that means 2 into 2 into 2, and for 9 means 3 into 3, that means 3 into 3, 25 means 5 into 5 is there। okay, now LCM means nothing is common here, common कुछ भी नहीं आपके पास में, so 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 5 into 5, got it। now 5 5s are 25, 25 2s are 100, 100 2s are 200, 200 2s are 400, 400 3s are, means 1200। now 12 3s are 36, so this will be 3600 is the LCM। now the HCF means common, nothing is common there, so 1 is always the HCF। okay, so next question, now question number 4, question 4 is given that HCF 306 657 is equals to 9, so find the LCM 306 and 657। so आपको दोनों, अब आपको कुछ याद होगा जो हमने अभी किया था क्वेश्चन, दैट वेरीफाई वाला था ना, उसमें क्या था आपका LCM into HCF, उसमें हमने देखा था LCM into HCF is equals to the product of the two numbers, product of the two numbers, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ना व्हाट इज LCM, LCM क्या करना है आपको फाइंड करना है, सो दिस विल बी सेम LCM। HCF आपको क्या करना है इन दोनों के लिए, HCF इक्वल्स टू 9, HCF ऑलरेडी गिवन है 9,
नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और दोनों नंबर्स क्या है 306 into 657. Now you have to find the LCM. So this one is in the form of multiplication. So this will get converted into division. ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई है तो. So LCM is equals to 306 into 657 डिवाइड बाई 9. और सेकेंड मेथड में हम क्या बोल सकते हैं, आपका बैलेंसिंग मेथड के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं. आप इन दोनों तरफ से अगर 9 से डिवाइड किया, सो दिस विल कैंसिल आउट. सो यहाँ पे आपके पास 9 बचेगा. नाउ यू कैन कैंसिल आउट बाय 3. सो दिस विल बी 102 3. नाउ अगेन 3 3s are 9, 3 4s are 12. Now the LCM is equals to 34 into 657. Now simply you can multiply this 34. 7 4s are 28, 2 is there, 5 4s are 20, 22, 6 4s are 24, then 26 is there. Now you have to multiply it by 3. 7 3s are 21, 2 is there, 5 3s are 15, plus 2 17, okay, 6 3s are 18, plus 1 19. So this will be 22,338. This one is the LCM. Okay. Now fifth question. Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. आपका n जो है वो नेचुरल नंबर है. आपको ये बताना है कि 6 की पावर n, n मीन्स नेचुरल नंबर, आपका अगर 0 से एंड होता है for any. Now fifth question, check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number. आपको ये चेक करना है कि 6n जो है वो 0 डिजिट से आपका एंड करता है क्या. ओके, सो आंसर विल बी if 6n can एंड विद, अगर आपका 6n जो है वो डिजिट 0 से एंड होता है, सो दैट मीन्स इट कैन बी डिविजिबल बाय 5. आपको पता है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 क्या होता है. लाइक 5 की टेबल आप बोलते हैं 5 देन 10 देन 15 20, सो दैट मीन्स 5 0 5 0 5 0. आपका एंड जो है नंबर वो 5 0 से होता है. अगर वो 0 से एंड हो रहा है, सो देन इट इज डिविजिबल बाय 5. देन इट इज divisible by 5, right? बट आप इसके फैक्टर्स देख रहे हैं, बट फैक्टर्स ऑफ 6n which means 2 into 3, these are the factors of 6, 2 and 3. So इसके अंदर आपका क्या रखा है, इसके अंदर आपका 0 नहीं है, so that means it is not divisible by 5. 5 is not in this digit. 5 is not prime factor of this number. Okay, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, so then 6 to the power n is not ended with 0. ये आपका 0 से एंड नहीं होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. हमें ये बताना है कि ये composite numbers हैं क्या. So सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ. एक होता है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मीन्स अ नंबर विच आर हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली. ओके, 2 फैक्टर्स ही होते हैं. वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो होता है नंबर 1 और दूसरा होता है वो खुद. ओके, the number 1 and the number itself. like आपका 5 है, so 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 and 5. so 1 तो आपका हमेशा होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर आपका 1 जरूर आता है. एक खुद अगर आता है, so इन दोनों के अलावा कोई नंबर अगर आपके पास में आ रहा है, so that means that number is a composite number. like 4, so 4 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4. so 1 and itself,
अगर सिर्फ 2 ही नंबर आते आपके पास में तो ये आपका प्राइम नंबर होता, बट इसके अलावा आपके पास में एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे है, सो इसलिए क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि दैट दीज आर कंपोजिट नंबर्स। सो फर्स्ट वन इज 7 into 11 into 13 plus 13। ओके, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 13 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? पहले तो हम टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। क्लास 8 के अंदर आपने पढ़ा था अबाउट द टर्म्स कि कितनी टर्म्स है। तो टर्म्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आपके पास में प्लस और माइनस है तो उससे वो क्या हो जाती है? टर्म्स डिवाइड हो जाती है वहां पे। सो लाइक आपके पास प्लस है, सो दिस वन इज ए टर्म फर्स्ट, दिस वन इज ए टर्म सेकेंड। सो 2 टर्म्स है, सो इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स से आप क्या कर सकते हैं? 13 कॉमन ले सकते हैं। यहां से आपके पास आया है 77 प्लस 1 इज फ्रॉम हियर, सो दिस विल बी 13 into 78। ओके, तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि आपके पास में 13 कॉमन आ रखा है। ओके, यहाँ पे आपके पास में क्या है? कॉमन आ रखा है। या फिर आप 78 के फैक्टर्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो 78 के फैक्टर्स क्या क्या होने वाले हैं आपके पास में? वो नंबर या तो खुद होना चाहिए या फिर क्या है आपका 1 होना चाहिए। लेकिन 78 इट इज एन इवन नंबर ना, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? इवन नंबर जितने भी एक्सेप्ट 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर आपके पास में होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। सो इवन नंबर आपके पास आ चुका है, सो दैट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो क्या आएगा? इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ हम सेकंड देख लेते हैं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। सो 2 टर्म्स है, दोनों से आप 5 कॉमन ले सकते हैं। सो यू विल गेट 6 7s are 42, 42 2s are 84, 42s are 84। Now what is left? 84, 4 3s are 12, so this will be 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 84, so this will be 8 10 9 10। okay, now this will be 108 plus 1 is there, so 5 109 is there। okay, again हम चेक करने वाले हैं। 6 7s are 42, 42। now 4 3s are 12 and 12 2s are 24, so आप 24 से इसके करेंगे, so this will be 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 that means 20 is there, 4 2s are 8 9 10, so that means 108 and 109 is there। अगर वो नंबर आपके पास में है और उसके अलावा आपके पास में दूसरे नंबर्स आते हैं, आप इसके जो फैक्टर निकालेंगे so you will get a different numbers, so it is also a composite number। क्या आएगा आपके पास? it is also composite numbers। okay, now question number 7th and last question of this exercise, which is there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi take 12 minutes for the same। so suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes they will be meet। ओके, सो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सोनिया एंड रवि जो है वो क्या कर रहे हैं? सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है ड्राइव करने के लिए एंड रवि जो है वो 12 मिनट्स ले रहे हैं। उन दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया था, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछा गया है कि वो कब जाकर मिलने वाले हैं, किस पॉइंट पे जाकर वो मिलने वाले हैं, वो आपको देखना है। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है सो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर। ओके, सो एलसीएम आप किसका फाइंड करने वाले हैं? दैट 18 एंड 12। सो फैक्टर्स आप निकालेंगे 18 के, सो 2 9s are 18, then 3 3s are 9, so factors are 2 into 3 into 3। now for the 12, 2 6 are 12, 2 3s are then 1, so factors are 2 into 2 into 3। so एलसीएम आप निकालने वाले हैं दोनों नंबर्स का। सो क्या होता है? कॉमन जो होता है उसको आप 1 टाइम लिखने वाले हैं, सो दिस विल बी 2, कॉमन जो है उसको आप 1 टाइम लिखेंगे एंड दिस विल बी 3 इज लेफ्ट देयर, सो राइट डाउन 3। नाउ 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। ओके, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? 30। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट। ओके, 36 मिनट होते हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव डन योर एक्सरसाइज 1.1
In your next video we will start exercise 1.2. Okay, see